गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला बनी है इस वीडियो में, आप जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें। यस वी कैन, ऑफ कोर्स हम लोग कर सकते हैं, जरूर करेंगे। बने रहिए इस चैनल में। धन्यवाद। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा जा रहा है कार्बन डेटिंग के संबंध में। Consider the following statement regarding carbon dating. Carbon dating can also be used to determine the age of non-living things. The age of the things that are more than 40,000 to 50,000 years cannot be arrived at through carbon dating. I think it's A is the right answer, B is the right answer. Which are the correct? Only and only B. Let's see something about it. कार्बन डेटिंग कैन नॉट बी अप्लाइड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ध्यान रहे, कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल सभी परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता है। स्पेसिफिकली ध्यान रहे, स्पेसिफिकली इट कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। डिटरमाइनिंग द नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो बिल्कुल नहीं किया सकता है, ठीक है। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ नॉन लिविंग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया सकता है। और साथ साथ जिसके उम्र जो है, द एज ऑफ द थिंग्स दैट मोर देन 40,000 टू 50,000, इसका भी इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं उसके उम्र को ज्ञात करने में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग। देयर आर अदर मेथड्स टू कैलकुलेट द एज ऑफ इनएनिमेट थिंग्स, बट कार्बन डेटिंग कैन ऑल्सो बी यूज इन एन इनडायरेक्ट वे in circumstances. For example, the age of the ice core in glaciers, age of the ice core in glaciers and polar region is determined using carbon dating by studying the carbon dioxide molecules trapped inside the large ice sheets. The trapped molecules have no interaction with the outside atmosphere and are found in the same state as when they were trapped. तो जब से वो उसमें प्रवेश कर चुके हैं तब से वो किसी बाह्य वातावरण के संपर्क में तो है नहीं, तो इसलिए उसकी भी उम्र आसानी से निकाली जा सकती है। अब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन। ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन is the first intergovernmentally negotiated agreement to cover all dimensions of international migration. It was prepared under the auspices of the United Nations. The Global Compact is legally binding agreement. Global Compact is legally binding. I think it's a no. Let's see, only and only 1 and 2. Global Compact for Migration is the first intergovernmentally, ध्यान रहे, first intergovernmentally negotiated agreement prepared under the auspices of United Nations to cover all dimensions of international migration in a holistic and comprehensive manner. The Global Compact for Migration is the first ever UN global agreement on a common approach to international migration in all its dimensions. The Global Compact is a non-legal binding. ध्यान रहे, it's a non-legal bonding. Okay, ये binding नहीं है. Consider the following statement regarding United Nations Alliance of Civilization, UNAOC. United Nations Alliance of Civilization aims to improve the understanding and the cooperative relations among nations and peoples across the cultures and region. Okay, it helps to counter the forces of the fuel, polarization and extremism. UNAOC was established at the initiative of Government of India and the US
I think it's a no. It's a A. Only A. एक और दो सही है. देखिए, alliance of civilization. The alliance of civilization aim to improve understanding and cooperative relations among nations, peoples across cultures and religions, ताकि लोगों के बीच, समुदाय के बीच, कल्चर के बीच, संस्कृति के बीच, धर्म के बीच एक तरह से बेहतर सहयोग, समझदारी विकसित हो सके. It also helps to counter the forces that fuel polarization, extremism. ये जो उग्रवाद, ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है पूरे विश्व में, इसको कैसे तोड़ा जाए, इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये इसके लिए काम करती है. यूनाइटेड नेशन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन वाज इस्टेब्लिश इन 2005. तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 2005 में हुई थी. और ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड टर्की का. तो ये इनिशिएटिव किसका था? ध्यान रहे, स्पेन और टर्की का इनिशिएटिव था 2005 में, अंडर ऑस्पिशियस ऑफ यूनाइटेड नेशन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस. According to UN Charter, every member state is legally obligated to pay their respective share of peacekeeping. It's obliged, legally obliged. Peacekeeping forces are contributed by UN member states on a voluntary basis. Civilian personnel cannot be a part of UN peacekeepers. ऐसा नहीं है. एक और दो सही है. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, इसमें यूपीएससी मेंस में भी पूछी है. लेट्स सी समथिंग अबाउट इट. यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक जॉइंट एफर्ट है बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट. तो ये किसके किसके बीच एक जॉइंट एफर्ट है? डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट. एवरी पीस कीपिंग मिशन इज ऑथराइज्ड बाय सिक्योरिटी काउंसिल. तो किसी भी पीसकीपिंग को कहीं भी भेजना हो, उसको मॉनिटर करना हो, तो उसके लिए सिक्योरिटी काउंसिल का परमिशन अनिवार्य है. अब बात करते हैं इसके फंड की. तो फिनेंशियल रिसोर्सेस ऑफ यूएन पीसकीपिंग ऑपरेशंस आर कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल ऑफ यूएन मेंबर स्टेट्स. कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है. अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर, एवरी मेंबर स्टेट इज लीगली ऑब्लाइज्ड. ध्यान रहे, it's legally obliged. It's legally obliged to pay their respective share for peacekeeping. एक अपना शेयर को हर हाल में उनको देना ही होगा और ये लीगली है. UN peacekeepers are often referred as a blue berets, blue helmets. ध्यान रहे, इस तरह के यूपीएससी पूछेगा कि ब्लू हेलमेट्स या ब्लू बैरेट्स किससे जुड़ा हुआ है. तो सिंपल है, ये है यूएन पीसकीपर से. ठीक है. Because of their light blue berets और helmets can include, जिसमें कि कौन कौन शामिल होते हैं ये भी जान लीजिए. इसमें सोल्जर्स, पुलिस ऑफिसर एंड सिविलियन ऑल्सो. ठीक है, सिविलियन पर्सनल भी होते हैं. पीस कीपिंग फोर्सेस आर कंट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर स्टेट्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस. ये पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं वो वॉलेंट्री बेसिस पे भेजे जाते हैं. सिविलियन स्टाफ ऑफ पीस ऑपरेशन आर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स. ये इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट होते हैं. अगर आईएएस बन गए आप, और हो सकता है एक समय में आईपीएस भी हैं आप, या फिर कोई भी हैं, तो आपको एक निश्चित समय के पश्चात हो सकता है आपको रिक्रूट किया जाए वहाँ पर. तो रिक्रूटेड कर सकते हैं, डिप्लॉयड हो सकते हैं आप यूएन सेक्रेटरीट के रूप में. ठीक है, बाय दी यूएन सेक्रेटरीट. तो यूएन सचिवालय हो सकता है आपके कामों को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर आपको रिक्रूट कर सकता है. Consider the following statement regarding
Arms Trade Treaty ATT. Arms Trade Treaty, it establishes common international standards for the regulation of international trade in ammunition, weapons, weapon parts, and arm components. The treaty regulates the domestic sale or the use of weapons in any country. Recently, India joined the treaty. भारत ने इसमें जुड़ा है कहाँ दिया अभी? आर्म्स ट्रेड ट्रीटी की बात कर ले, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड इन द कन्वेंशनल आर्म। ध्यान रहे, कन्वेंशनल आर्म की ट्रीटी के बीच उसको लेकर है। मतलब एक तरह से समझ लीजिए इसकी कोशिश है प्रिवेंट करने की और इरेडिकेट करने की इलिसिट ट्रेड एंड डाइवर्स ऑफ कन्वेंशनल आर्म्स बाय एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स governing arms transfer. ATT contributes to the international and regional peace, security, stability, reducing human suffering, and promoting cooperation, transparency, responsible action among the international community. इस ट्रीटी को फोर्स में लाया गया था 24 दिसंबर 2014 को। ATT सेक्रेटेरिएट इज हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है ATT का। भारत ने अभी तक इस पर सिग्नेचर नहीं किया है, ध्यान रहे। ATT आर्म्स, ठीक है, ट्रेड ट्रीटी पर भारत ने अभी तक इस पर सिग्नेचर नहीं किया है। व्हाट टाइप्स ऑफ द कन्वेंशनल वेपन्स डील डज द आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू सीक रेगुलेट? किस प्रकार के हथियारों को ये मतलब एक तरह से नियम बनाता है? कन्वेंशनल वेपन्स कवर्ड बाय द यूएन आर्म्स ट्रेड ट्रीटी इंक्लूड tanks and other armored combat vehicles, artillery, attack helicopters, naval warship, missiles, missile launcher, small arms. It also established common international standard for the regulation of the international trade in ammunition, weapons, parts, and armed components. The treaty does not regulate the domestic sale. ध्यान रहे, इस बात को याद रखिएगा आप। इस ट्रीटी में डज नॉट रेगुलेट द डोमेस्टिक सेल और यूज ऑफ वेपन्स इन एनी कंट्री। एक ही कंट्री में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज द लेजिटिमेसी ऑफ आर्म्स ट्रेड to enable state to provide for their own security. Next question है, UN Convention on Rights of Person with Disabilities recognizes which of the rights for differently abled? जो UN कन्वेंशन है राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसएबिलिटीज recognizes which of the rights for the differently abled? Right to personal mobility, right to accessibility including the information technology, right to participation in political and public, सब के सब। Rights specific to this convention include right to accessibility including the information technology, right to livelihood या lived independently be included, community article 19, to personal mobility article 20, habilitation and rehabilitation article 26, and participation in political and public affair, cultural life, recreation and support sports article 29-30. Consider the following statement regarding the trade ties between India and Bangladesh. Under the provisions of South Asian Trade Area (SAPTA), Bangladesh extend preferential tariffs to Indian export of products outside and the sensitive list of items. Protocol on Inland Waterways Trade and Transit (PIWWD) has been
a place to facilitate trade and transit through inland waterways. Currently, six border hearts are functional on India-Bangladesh border for boosting the local economic as well as strengthening people-to-people tie between two countries. Which of the statements is correct? I think you know about that article. Is absolutely A is the right answer, not 6. Under the provisions of SAPTA, ये जो साप्टा है जिसको साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया बोलते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, बांग्लादेश extend preferential tariffs to Indian exports of products outside the sensitive list of 993 items. तो प्रेफरेंशियल टैरिफ्स उस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है, भारत के जो प्रोडक्ट वहाँ जाते हैं. इन 2000 लेवल इंडिया अनाउंस ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री एक्सेस टू बांग्लादेश. बांग्लादेश के लिए रास्ता पूरा खुला हुआ है, ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री फॉर ऑल टैरिफ्स लाइंस एक्सेप्ट टोबैको एंड अल्कोहल. टैबैको एंड अल्कोहल छोड़ के, दारू और तंबाकू उसको छोड़ दिया जाए तो आप आराम से अपना सामान भेजिए. ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री है. To facilitate trade and transit through the inland waterways, a protocol on Indian island waterways trade and transit has been placed in since 1972. तो इसमें एक ट्रीटी भी है 92 से, PIWTT. MOUs were signed in 2015. The use of the Chittagong and Mongla port for the movement of goods and from India टू एंड फ्रॉम इंडिया. ओके, इसमें मोंगला पोर्ट, चिटगांव पोर्ट. लेकिन ध्यान रहे, MOU ऑन बॉर्डर हार्ट्स ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर वाज रिन्यूड इन 2017 ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हसीना टू इंडिया. लेकिन ध्यान रहे आपको, अभी वर्तमान में 4 बॉर्डर हार्ट टू इच इन मेघालय एंड त्रिपुरा एज फंक्शनल. 4 वही अभी बॉर्डर हार्ट्स काम कर रहा है, ठीक है, 4 बॉर्डर हार्ट्स. अभी 2 पे काम चल रहा है, ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश बॉर्डर, मेघालय बांग्लादेश बॉर्डर. 2 sides have also decided to identify location for another 6 borders. दूसरे हाट में और भी 6 बॉर्डर की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रहे अभी 4 को ही है, ठीक है. एक मेघालय में, 2 मेघालय में, 2 त्रिपुरा में. ऑपरेशन लंदन ब्रिज चर्चा में है. क्या बात है, क्यों चर्चा में है भैया? यूके का सी आंसर है, द प्लान टू डील विद द डेथ ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इन ब्रिटेन. प्लान टू डील विद डेथ ऑफ द हेड स्टेट ऑफ द ब्रिटेन को कहा गया है ऑपरेशन लंदन ब्रिज. क्योंकि आपको पता है राजा रानी वहाँ है, तो राजा रानी मौत होता है, तो उसी से चर्चा में ऑपरेशन लंदन ब्रिज. Consider the following statement regarding recently launched Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. IPPP के बारे में पूछा जा रहा है. IPEF, Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity is an economic initiative led by United States. The grouping includes all of the members of Association of South Asian Nation. ASEAN के सभी मेंबर इसमें शामिल हैं. IPEF is a free trade agreement where countries have agreed to reduce tariff and increase market access. ये तो जनरल स्टेटमेंट है, तो सही बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा इसका सही जवाब है एक केवल. तो यहाँ पर आप गलत हो गए. देखिए, US प्रेसिडेंट जो बाइडन discussed the IPEF is the first East Asia Summit on October 2021. United States will explore with the partners the development of Indo-Pacific Economic Framework, define shared objective
around the trade facilitation, standard for digital economic technology, supply chain resilience, decarbonization, and clean energy, infrastructure, worker standards, and other share areas या share interest. इट इज़ नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ध्यान रहे IPEF कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है. नॉट द same old a kind of trade agreement, but allows members to negotiate the parts they want to. Currently, India and 13 countries located in Pacific Ocean are its member. भारत और इसके 13 जो अदर कंट्रीज़ हैं जो पैसिफिक ओशियन के मेंबर्स हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, Philippines, Singapore, Thailand, United States, and Vietnam are the members. Recently, India has ratified the UN Convention Against Torture. India does not have an exclusive anti-torture legislation. दोनों के दोनों बेटा ध्यान रहे, एक सही है कि इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है. India does not have any anti-torture legislation. ठीक है, इंडिया का कोई भी अपना एंटी टॉर्चर लेजिस्लेशन नहीं है एट टू क्रिमिनलाइज custodial violence. India had signed the UN Convention Against Torture in 1997, बट अभी तक इसने रेटिफाई तो नहीं किया है. पता ही होना चाहिए आपको, भारत ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया. सिग्नेचर हो चुका है बट रेटिफाई नहीं किया है. Consider the following statements. Sovereignty, a sovereign equality means all states are equal under international law in spite of inequalities between them in areas such as military power, geographical, population, economic development. लेकिन sovereign equality means यही तो होता है कि सब राज्य बराबर हैं इस धरती पर. ऐसा क्या? UN Charter does not recognize the principle of sovereign equality but recognizes the doctrine of collective security. ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इसे एक सही है. Sovereign equality is a judicial nature. Judicial मतलब sovereign equality का मतलब है all states are equal under the international law. अंतर्राष्ट्रीय कानून की नज़र में सब बराबर है, चाहे उसकी औकात कुछ भी क्यों ना हो, उसके एरिया कितना भी क्यों ना हो, इक्वालिटी कितनों भी ना क्यों हो, चाहे उसका मिलिट्री पावर, जियोग्राफिकल पावर, पॉपुलेशन साइज, लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबका अलग अलग है रे. फिर भी इंटरनेशनल कानून में सॉवरेनिटी इक्वल मतलब यही होता है कि सब बराबर है. सॉवरेन इक्वालिटी अलोंग विद कलेक्टिव सिक्योरिटी. ध्यान रहे, सॉवरेन जो है ना वो इक्वालिटी वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के साथ आता है. एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है यूएन का. ठीक है, यूएन चार्टर स्टेट्स दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन इज टू सेव succeeding generation from the source scourge of war. UN Charter contains the doctrine of, ध्यान दीजिए, UN Charter contains the doctrine of collective security in Article 39. UN Charter contains करता है doctrine of collective security in Article 39. Security Council shall determine the existence of any threat to peace, breach of peace, act of aggression, and shall make recommendation or decide what measures shall be taken in accordance with Article 41, 42 to maintain to restore the international peace and security. Consider the following statement regarding developing country status in WTO. A country with developing country status can seek temporary exceptions from the commitments under the various multilateral trade agreements ratified by the WTO. They can continue to impose tariffs and quotas on goods and services in order to limit imports and promote domestic producer. Of course,
Most of the export by developing countries are exempted from import duties in developed countries. Which of the following? Of course, बी वन एंड टू, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं बल्कि बी एक और दो. देखिए डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस जो है ना, ये डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मतलब एक तरह से अलाउ करता है ए मेंबर ऑफ द डब्ल्यू टू सीक टेम्पररी एक्सेप्शंस. कुछ अस्थायी के लिए कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा फ्रॉम द कमिटमेंट्स अंडर द वेरियस मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स रेटिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. दे कैन कंटिन्यू इम्पोर्ट्स, इम्पोज कर सकते हैं, वो टैरिफ लगा सकते हैं, कोटा निर्धारित कर सकते हैं उन वस्तुओं का, उन सर्विसों का जो उनके यहाँ आता है. ठीक है, इन ऑर्डर टू लिमिट इम्पोर्ट्स को निर्धारित कर सकते हैं ताकि वो अपना घरेलू प्रोड्यूसर को प्रमोट कर पाएँ हु मे अदरवाइज अफेक्टेड एडवर्सली. वरना उनके तो घरेलू उद्योग तो घरेलू कंपनियां तो बंद ही हो जाएगी. ठीक है, अदरवाइज बी अफेक्टेड एडवर्सली बाय द इम्पोर्ट्स एट द लोअर इन द प्राइस और बेटर इन द क्वालिटी. However, export by developing countries are not exempted. लेकिन ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलने का मतलब है कि आपको आप पर कोई मतलब ड्यूटी ही नहीं लगेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी ही नहीं लगेगा डेवलप कंट्रीज के द्वारा. नहीं, ऐसा नहीं है. वो कुछ अपना रियायती दे सकते हैं लेकिन इम्पोर्ट ड्यूटी तो लगता ही है. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. यूएनएससी के बारे में पूछा जा रहा है. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली यूएन बॉडी with authority to issue binding resolution. मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही है यूएन का मात्र एकमात्र बॉडी जो मतलब कुछ ऐसे दिशा निर्देश जारी करता है जो बाइंडिंग होता है. All decision of United Nations Security Council must be approved by the UN General Assembly to be enforced. United Nations Security Council can take action in situation threatening the international peace and security. ले सकता है, of course, why not. दो बातें आती है, केवल एक और तीन सही है, दो नहीं सही है. Decision taken under the Chapter 7 such as economic sanctions, other sanctions like international security or binding the UN members or binding on UN members. Security Council is the only UN body. ध्यान रहे, सिक्योरिटी काउंसिल इज द ओनली यूएन बॉडी. सिक्योरिटी काउंसिल ही एकमात्र यूएन बॉडी है विद द अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग रेजुलेशन. ठीक है, बाइंडिंग रेजुलेशन जारी करने का एकमात्र अधिकार सिक्योरिटी काउंसिल के पास है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन इन दिस रिगार्ड. तो कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का पावर तुलनात्मक रूप से बाइंडिंग जो नीतियां होती है उसको लागू करने में उसका भूमिका बहुत, रेजुलेशन उसका मतलब एक प्रस्ताव के रूप में बस खाली रिकमेंडेशन दे सकता है. लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का बहुत पावरफुल डिसीजन है, डिसीजन मेकर है. Decisions are voted by the P5 cannot be submitted for the review of United Nations General Assembly. P5 के द्वारा लिया गया निर्णय, वीटो जिसको बोलते हैं, वीटो पावर, वो जनरल असेंबली में वहाँ पर कुछ होता नहीं है, उसका रिव्यू करने का उसका पावर नहीं है. United Nations Security Council is the authority under the UN Charter to take action against the situation that is threatening the international peace and security. अगर विश्व की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा आए तो यूएन चार्टर सिक्योरिटी काउंसिल को इतना पावर कर देता है, इतना पावर ही देता है कि वो चाहे तो सैंक्शंस लगा सकता है, धमकी दे सकता है विश्व को. और कई बार ऐसा हुआ भी है, इसका गलत इस्तेमाल. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कलर रेवोल्यूशन. एक कलर रेवोल्यूशन से सवाल पूछा जा रहा है. कलर revolutions refer to a series of uprisings that first began in the former communist nations in the Eastern Europe in the early 2000 century. मतलब 2000 के दशक में ये कि कम्युनिस्ट नेशंस के द्वारा यूरोपियन जो ईस्टर्न पार्ट्स हैं उसके द्वारा मतलब उठाया गया मुद्दा है क्या. इट इन्वॉल्व large scale mobilization on streets with the demands for free election or regime change. Ukraine's Orange Revolution
and Jasmine revolution in Tunisia are some of the example. यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, ऑरेंज रेवोल्यूशन कहाँ का है, जस्माइन रेवोल्यूशन कहाँ का है, यू नो अबाउट दैट. दैट विल बी वेरी इजी. ऑफ कोर्स सो डी 1 2 3. ये जो कलर रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं आप, इसका मतलब है सीरीज ऑफ अपराइजिंग. ठीक है, सीरीज ऑफ अपराइजिंग फर्स्ट बिगेन इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशन. पहली बार इसको कम्युनिस्ट नेशन के द्वारा, वो भी ईस्टर्न यूरोप का जो कम्युनिस्ट नेशन है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था अर्ली 2000 के आसपास. कलर रेवोल्यूशन जो है वो कम्युनिस्ट नेशंस के द्वारा शुरू किया गया था 2000 के आसपास. बट आर ऑल्सो यूज इन रेफरेंस टू द पॉपुलर मूवमेंट. जैसे कि मिडिल ईस्ट में, एशिया में भी मूवमेंट को लिए इसको मतलब प्रेरित किया जाता है कलर रेवोल्यूशन. मोस्ट हैव इन्वॉल्व लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑन स्ट्रीट. सब लोग सड़क पे निकल आते हैं, डिमांड करते हैं फ्री इलेक्शन या रिजीम चेंज की, सरकार बदली जाए, रिमूव किया जाए, ये जो ऑथोरिटियन लीडर्स है उसको हटाया जाए, ये दादागिरी, ये नेता जो एक तरह से कहीं ना कहीं हिटलर बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको हटाओ. प्रोटेस्टर ऑफन वियर अ स्पेसिफिक कलर सच एज, यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन हो गया. पूछा जा सकता है कि यूक्रेन में ऑरेंज रेवोल्यूशन कहाँ से है, ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में है. बट द term has also been used to describe movements named after flowers like the Jasmine Revolution जो कि ट्यूनिसिया में हुआ था. 2019 में बीजिंग had said the protest in the Hong Kong had taken color revolution characteristics. इसी के समय 2019 में हांगकांग में इसको कलर रेवोल्यूशन का चिन्ह दे दिया गया. अगला क्वेश्चन है स्पेशल 301 रिपोर्ट्स. ये क्या है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है ये स्पेशल 301 रिपोर्ट्स? इससे वर्ल्ड बैंक या फिर यूनाइटेड नेशन ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यूनाइटेड स्टेट का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. देखिए ऑफिस ऑफ स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट का एक ऑफिस है, उसका नाम रखा गया है ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, रिलीज इट्स एनुअल स्पेशल 301. यही 301 रिपोर्ट जारी करता है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जो कि मतलब बताता है कि ओवरऑल ग्लोबल स्टेट क्या है आईपीआर का, प्रोटेक्शन का एंड इन्फोर्समेंट कितना लागू हो पा रहा है, जो ग्लोबल स्टेट ऑफ आईपीआर प्रोटेक्शन इन्फोर्समेंट. The review reflects to encourage and maintain enabling environments for innovation, including effective IPR protection and enforcement. मतलब एक तरह से सोच लीजिए वो आईपीआर प्रोटेक्शन कितना जरूरी है. अगर इसको प्रमोट नहीं किया जाएगा ना तो ये कहीं ना कहीं इनोवेशन को चौपट कर देगा. जो एक तरह से कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेटिव आइडियाज, वो बाहर आएंगे ही नहीं. इसलिए इसका सुरक्षा जरूरी है, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, होता नहीं सब. इट डिफाइंड या इट आइडेंटिफाइड द ट्रेडिंग पार्टनर्स टू डेट that do not adequately or effectively protect and enforce intellectual property rights. It aims to improve the environment for others, brand owners, investors around the world. तो कहीं ना कहीं एक तरह से इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा इन्वायरमेंट जो अथर्स, ब्रांड ओनर्स, इन्वेंटर्स को मतलब एक तरह से इम्प्रूव किया जाए. फॉर कंट्रीज टू फेल टू एड्रेस द यूएस कंसर्न, यूएसटीआर टैक्स अप्रोप्रिएट एक्शन. तब आता है यूएसटीआर की बारी, वो बड़ा एक्शन लेता है इन लोगों के खिलाफ, विच मे इंक्लूड इन्फोर्समेंट एक्शन अंडर 301 ऑफ ट्रेड एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यूएन जनरल असेंबली से पूछा जा रहा है. यूएन जनरल असेंबली इज ए यूनाइटेड नेशंस चीफ पॉलिसी मेकिंग एंड
यूनाइटेड नेशंस का चीफ पॉलिसी मेकिंग यूनियन जनरल असेंबली है एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन. Each of 193 members states of UN has an equal vote in General Assembly. At the beginning of each regular session, Assembly holds the general debate where representatives of each member state are provided the opportunity to raise any issue that concern them. Yeah, of course, सब सही है. UN General Assembly, UNGA, the United Nations Chief Policy Making and Representative Organ, was created in 1945. 1945 में इसका गठन हुआ था. इट मीन्स फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर, हर साल इसकी मीटिंग होती है सितंबर से दिसंबर के बीच में. देन अगेन बिटवीन जनवरी एंड अगस्त के बीच में होता है. 193 के 93 मेंबर्स को ध्यान रखिएगा इक्वल वोट राइट दिया गया है. हैज़ एन इक्वल वोट इन जनरल असेंबली. सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से ये एक तरह से लोकतांत्रिक बिहेवियर को दिखा रहा है. एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, इच रेगुलर सेशन इन सितंबर, असेंबली होल्ड्स इट्स मेन इवेंट, general debate, where representatives of each member states are provided the opportunity to raise any issues that concern them. Next question, consider the following statements. All the members of the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation in BIMSTEC are littoral state. Okay, so littoral states. जितने बिम्स्टेक के मेंबर सब लिटोरल स्टेट्स है, मतलब कहीं ना कहीं वो जलभूमि से घिरे हुए हैं. Bay of Bengal Maritime Dialogue, Bay of Bengal Maritime Dialogue, BOBMD, is organized by BIMSTEC. Which of the above is incorrect? पहला ही तो इनकरेक्ट है, दोनों का दोनों इनकरेक्ट है. देखिए, इसकी स्थापना की बात कर ले पहले. 1997 में बिम्स्टेक की गठन होता है. 7 मेंबर इसमें शुरुआत में थे. ठीक है, 7 मेंबर्स बिम्स्टेक्स विच इंक्लूडेड लिटोरल स्टेट्स, जिसमें पहले अगर लिटोरल स्टेट की बात करें तो इंडिया, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर म्यांमार. थाईलैंड इज ए मेंबर 2 एंड लैंड लॉक्ड स्टेट्स जैसे नेपाल है, भूटान है. हैज़ आइडेंटिफाइड 14 पिलर्स फॉर स्पेशल फोकस. 14 इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु हैं इनके. दीज आर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ, पॉवर्टी एलिविएशन करना है, काउंटर टेररिज्म है, ट्रांस नेशनल क्राइम, इन्वायरमेंट, डिजास्टर प्रॉब्लम, डिजास्टर मैनेजमेंट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. दैट्स ऑल, यही सब है. कल्चरल होना चाहिए, कॉपरेशन, क्लाइमेट चेंज की बात हो, मतलब ओवरऑल दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब कुछ. बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग ऑर्गेनाइज रिसेंटली, अभी हाल में ये इसका गठन हुआ है, बे ऑफ बंगाल मैरीटाइम डायलॉग का, by the Center for Humanitarian Dialogue, Humanitarian Dialogue and Pathfinder Foundation, brought together the government of PCL, maritime experts, representative of prominent think tanks from Sri Lanka, Bangladesh, India, Myanmar, Thailand, Indonesia. ये सब अभी मतलब हाल में इसका गठन हुआ है. अब आपका क्वेश्चन होगा पॉलिटी से. पहला प्रश्न है पॉलिटी से. विच ऑफ द फ्लोइंग ideally should not be features of a democratic polity? Military can take over civilian institution if they fail to deliver on democratic hopes. Censorship of the press. Government should not be run by non-elected individuals. जनरली ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी का फीचर्स तो कौन कौन सा नहीं है, तो एक वाला, 3 वाला, सेंसरशिप जनरली होता ही है, मतलब 1-2 सेंसरशिप ऐसा नहीं माना जा सकता है. देखिए, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपुल टू चूज देयर रूलर्स.
हम पे कौन शासन करे, हमारा शासन कौन चलाए, इसके लिए तो हम लोग सरकार चुनते हैं। इन डेमोक्रेसी ओनली लीडर्स इलेक्टेड बाय द पीपल शुड रूल द country. People have the freedom to express views, freedom to organize, freedom to protest. ओके, ये सब मतलब जस्ट डेमोक्रेसी के मतलब एक तरह से फाउंडर, एक तरह से कह सकते हैं फाउंडिंग टेनेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स के बारे में पूछा जा रहा है। ट्रिब्यूनल्स इज ए क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट हैव द पावर टू ट्राई केसेस of special matters which are conferred on them by statutes. For effective delivery of justice, the members of the tribunals must be compulsorily trained in law. The tenure, the terms, the condition of the service of the members of the administrative tribunals are entirely in the hands of the executive. 2 नंबर तो ऐसे ही आपको छोड़ देना चाहिए। चलिए, कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल्स में क्या डिफरेंसेस सुन लीजिए। A court of law is a part of traditional judicial system whereby judicial powers are derived from the state. जहाँ पर जुडिशियल पावर जो है ना वो स्टेट से डिराइव किया जाता है, जबकि ट्राइब्यूनल्स में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक एजेंसी है जो कि क्रिएटेड किया गया है कानून के द्वारा एंड इन्वेस्टेड विद द जुडिशियल पावर, उसके बाद उसको पावर जुडिशियल पावर दिया गया है। द सिविल कोर्ट्स हैव जुडिशियल पावर टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस the cognizance is expressly or impliedly bad. While tribunals is also known as the quasi judicial body, tribunals को quasi judicial body कहा जाता है। Tribunals have the power to try cases of special matter which are given on them by the statutes. Judges of the ordinary courts of law are independent of the executive in respect of their tenure, terms, condition of services. Judiciary is independent of executive. एग्जीक्यूटिव से पूरी तरह से स्वतंत्र है हमारा जुडिशरी, जबकि टेन्योर्स हो, टर्म्स हो, कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर इंटायरली इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। सरकार के हाथ में है वो ट्रिब्यूनल्स को किस तरह से चलाए, कितना पावर दे, क्या टेन्योर दे, क्या कंडीशन हो। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट of law is trained in law, while the president or the member of the tribunal may not be trained as well as in law, may be an expert in the field of administrative matter. Consider the following statement regarding the National Legal Service Authority NALSA. National Legal Service Authority NALSA is a constitutional body that provides free legal service to weaker section of the society. Chief Justice of India is a patron in chief. In every state legal service authority has been constituted to give effect to the policy and directions of the NALSA and to give free legal services to the people and conduct lok adalats in the state. केवल केवल 3 ही सही है कि 2-3 सही है? 2 और 3 दोनों सही दिया हुआ है। नालसा हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो ध्यान रखिएगा, नालसा का गठन जो है 1987 में किया गया है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत। तो ये तो श्योर हो गया कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत कर दीजिएगा। इट इज़ अ लीगल बॉडी, इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. The aim is to ensure that opportunities for in securing justice are not denied to any citizens by reason of economic or other disabilities. बस पैसे और मतलब किसी अयोग्यता के कारण किसी को न्याय ना मिल पाए, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है सामाजिक न्याय के लिए। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए मतलब न्याय की पहुंच आसान हो, सस्ता हो, इजी हो, न्याय सुनिश्चित तो हो, न्याय समय पर तो मिले, इसके लिए तो कोशिश किया जा रहा है।
कंपोजिशन की बात करें तो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट कहता है कि इसका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो इसका पैटर्न चीफ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बी द पैटर्न चीफ, पैटर्न चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरी बात, सेकंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो सेकंड जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, जबकि पैटर्न चीफ तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। उसके साथ साथ पैरेलल में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज बनाया गया है। इन एवरी स्टेट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू गिव effect to the policy and the direction of the NALSA and to give free legal services to the people and conduct lok adalat in state. The State Legal Services Authority is headed by the Honorable Chief Justice of the Representative High Courts, who is the patron chief of the State Legal Service Authority. तो patron chief of the State Legal Service Authority कौन होता है? तो Honorable Chief Justice of respective High Court. Consider the following statements. Article 14 says that the state shall not deny to any person equality before law or equal protection of law within the territory of India. Article 14 prohibits the class legislation and reasonable classification of person. Equal protection of law concept originated from United States Constitution, which means the law should be applied equally and fairly to the all people. Absolutely incorrect. तो 3 छोड़ दीजिए, बाकी तो आप जान ही चुके हैं इसका आंसर। 1, 2, 3, ये 3 सही दिया हुआ है, पॉसिबल। इट्स ए ब्रिटेन कंसेप्ट है। आर्टिकल 14 सेज दैट द स्टेट सेल, ध्यान सेल शब्द है, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, इक्वालिटी बिफोर, एनी पर्सन की बात की जा रही है, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस प्रोविजंस कन्फर्म राइट टू ऑल पर्सन वेदर सिटीजन हो चाहे फॉरेनर ही क्यों ना हो। Supreme Court held that where equal and equals where unequals and unequals are treated are differently, Article 14 does not apply. While Article 14 prohibits class legislation, ये देखिए क्लास लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है, इट परमिट्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और क्लासिफिकेशन द पर्सन सब्जेक्ट्स and transaction by the law. For example, special law can be made for differently able as the classification for reasonable and just. तार्किक सही होना चाहिए, तर्क सही होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, तो आराम से पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन करते ही हैं हम लोग। लेकिन ध्यान रहे, ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, EPL कम्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट law should be applied equally and fairly to all people. लिखिए, law should be applied equally and fairly to all people, fairly to all people. This is the equal protection of law दिया हुआ है, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो वो ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब समान के साथ समान किया जाएगा, ठीक है, और असमान के साथ असमान व्यवहार, स्पेशल ट्रीटमेंट अलाउडेड करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बाद। कानून की नज़र में सब बराबर है, वो बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है समानता का, ठीक है, और ये ब्रिटेन से अडॉप्ट किया गया था। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट लोगों के साथ विशिष्ट न्याय होगा, विशिष्ट व्यवहार होगा, जो एक तरह से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है समानता का। कहीं ना कहीं उस समाज की भी बात कर रहा है जो माइनॉरिटीज़ में है, जो दबे कुचले हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है सही ढंग से, तो उनको कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ की ज़रूरत है या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की ज़रूरत है। सोचिए आप। Consider the following statements regarding the preamble of the Indian Constitution. When the Indian Constitution was being drafted, the ideals behind the preamble were laid down in the objective resolution adopted by the Constitutional Assembly in 1947.
preamble is enforceable in a court of law. यही तो गलत है. The 42nd Constitution Amendment to the Constitution passed in 1976 replaced the words Sovereign Democratic Republic with the Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. उसने sovereign शब्द डेमोक्रेटिक शब्द के साथ रिपब्लिक शब्द के साथ छूछात तो नहीं किया था. करेक्ट तो है भाई. 3 और 2 तो सही, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 3 इसका सही जवाब है. एक ओनली 1 और 3 सही है. 1 और 3 दिया हुआ, पूरा शब्द ही बदल दिया. देखिए, प्रियम्बल सर्व्स एज एन इंट्रोडक्शन to a document and contains its basic principle and goals. When the Indian Constitution was being drafted, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, the ideas behind the preamble were first laid down the objective resolution. तो जो आइडियल्स थे, जो विचार थे, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, सब कुछ इसमें ड्राफ्टेड किया जा रहा था. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा गया था, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाद में संविधान सभा के द्वारा 1947 में स्वीकार किया गया था. इसके अलावा वायलेशन ऑफ एनी प्रिंसिपल मेंशन इन द प्रीएम्बल कैन नॉट बी द रीजन टू गो टू कोर्ट. इसका सीधा मतलब है प्रीएम्बल जो है ना, प्रीएम्बल जो है वो नॉन जस्टिसएबल है. हाउएवर, जजमेंट्स ऑफ द कोर्ट्स कैन साइट इट as an additional factor in their reasoning, given that it constitutes the spirit of the Constitution. 42वां अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, इमरजेंसी का समय था. उसने जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में कन्वर्ट कर दिया. तो ध्यान रहिए, सॉवरेन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक सब के कारण आप घबरा गए नहीं, ये ठीक है, मतलब ये सब उसी की तरह रखा गया, लेकिन उसको तो बरकरार रखना. सॉवरेन सोशलिस्ट, देखिए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के स्थान पे लिखा गया सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और साथ साथ यूनिटी ऑफ नेशन को बदल के यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन कर दिया गया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. द एक्सप्रेशन contempt of court has not been defined by the Constitution. The Supreme Court and High Court derived their contempt of court power from the Contempt of Court Act 1971. Fair and reasonable criticism of Judicial Act and comment on the administrative side of the judiciary do not amount the contempt of court. Yeah, of course, why not so? तो दूसरा गलत है बस. तो 1 और 3 सही है, क्योंकि आपको बता दिया जाएगा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि एक्सप्रेशन. Contempt of court has not been defined by the Constitution of India. You already know about that. UPSC already asked this question. Contempt of court refers to the offense showing disrespect to the dignity or the authority of a court. देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था. ऑब्जेक्टिव टू कंटेम्प्ट, ऑब्जेक्टिव फॉर कंटेम्प्ट इज स्टेटेड, कहा जाता है safeguard the interest of the public if the authority of the court is denigrated, मतलब disrespected, the public confidence in the administration of the justice is weakened. इससे क्या हो जाएगा ना, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो हो जाएगा, न्याय पर भरोसा लोगों से उठ जाएगा. अगर ऐसा लोगों को करने का मौका दे दिया जाए कि वो जब चाहे मतलब कोर्ट के दिए गए निर्णयों का धजिया उड़ा दें, या फिर कोर्ट के प्रोसेस को बाधित कर दे, या कोर्ट के पदाधिकारी के जो न्यायिक भूमिका उस पर टीका टिप्पणी करने लगे, तो एक तरह से कहीं ना कहीं जस्टिस सिस्टम जो है ना, मतलब एक तरह से वीकेंड हो जाएगा, इरोड हो जाएगा. उसको बरकरार रखने के लिए इसको हमारे संविधान में नहीं तो कम से कम इसके लिए स्पेशल एक्ट तो लाया गया 1971 में. देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसका जो पावर है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, इस संविधान, उसको आर्टिकल पढ़िएगा आप, आर्टिकल आई थिंक 129, 129 और 215 में इसका जिक्र किया गया है रिस्पेक्टिवली. ओके, as per the Contempt of Court Act 1971, contempts refer to the offense of showing disrespect to the dignity or the authority or of a court. इसके 2 हिस्से हैं, एक तो सिविल, दूसरा क्रिमिनल. सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है एक विलफुल डिसओबीडियंस टू द एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रीड, मतलब कोई आदेश दिया गया है, कोई डिक्री, कोई दिशा निर्देश, कोई मतलब
मतलब रीट जारी किया गया, उसका मतलब आप जानबूझकर बोल रहे हैं हम इसको पालन नहीं करेंगे, डिसओबीडियंस करेंगे, अवज्ञा करेंगे, या फिर द प्रोसेस ऑफ कोर्ट और द विलफुल ब्रीच ऑफ द अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। और क्रिमिनल में क्या होता है, इट इज एनी इफ इट इज एनी पब्लिकेशन विच मे रिजल्ट इन, अगर आप कुछ ऐसा लिख कर बोलकर छापकर अगर प्रस्तुत कर देते हैं जिससे कि कोर्ट स्कैंडलाइज हो जाए, स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लॉरिंग इट्स अथॉरिटी, इसकी जो भूमिका है, इसकी जो ताकत है उसको आप कमजोर कर रहे हैं स्कैंडलाइज करके, इंटरफेयर कर रहे हैं इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, या फिर एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय जो पहुंचना चाहिए उसमें कहीं बाधा और रुकावट बन रहे हैं तो भी ये क्रिमिनल एक्ट होगा। लेकिन ध्यान रहे, एक तरफ आप इन कठिन रास्तों की बात कर रहे हैं, कुछ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा देश आर्टिकल 19 भी प्रदान करता है, संविधान हमारे 19 आर्टिकल्स को प्रोवाइड करता है कि आप इनोसेंट पब्लिकेशन, distribution of some of the matter, fair and reasonable criticism of the judicial act, and comment on administrative side of the judiciary। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द जुडिशरी में अगर आप कुछ टीका टिप्पणी करते हैं, कुछ रीजनेबल तार्किक मतलब बात बोलते हैं, तो ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, जैसे कि आप देखे होंगे भूषण यादव के केस में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Judicial review of executive action is the basic feature of the Constitution, which are reiterated in the Minerva Mills versus Union of India। ये जो जुडिशियल रिव्यू है मिनर्वा मिल्स में निकल के आया है, ऐसा तो नहीं है। यू नो अबाउट दैट। इफ द एग्जीक्यूटिव वांट्स टू लिमिट द राइट्स ऑफ अ मीडिया हाउस लाइक सेंसर or restrict the speech, it must show that the test of the reasonable restriction is satisfied, which are incorrect। Of course, one is D, दोनों का दोनों सही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज repeatedly बार बार कहा है, बार बार that held that judicial review of the execution action is the basic feature of the constitution। जुडिशियल रिव्यू खास करके कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई भी एक्शन वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है अगर वो संविधान के मूल बातों को उल्लंघित कर रहा है। डिसीजन इज इन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। 1980 में मिनर्वा मिल्स जजमेंट आया था और एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में इसको बार बार कहा गया, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, जुडिशियल रिव्यू इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल। इफ द एग्जीक्यूटिव विशेस टू लिमिट द राइट्स, अगर सरकार चाहे कि किसी की राइट को कटल करे, विशेष इन द केस सेंसर लगा दे, रिस्ट्रिक्ट कर दे स्पीच को, इट मस्ट शो दैट द टेस्ट ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इज सेटिस्फाइड। एक तार्किक रीजन जो है वो स्पष्ट रूप से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जुडिशियल रिव्यू तो होगा भैया। दिस प्रिंसिपल इज द बेड रॉक ऑफ जुडिशियल रिव्यू, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द बेड रॉक, मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी है ये, बैकबोन of the democracy। Right to free legal aid, right to free trial, right to hearing, right to speedy trial, and are provided to citizens under the which of the following fundamental। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, आर्टिकल 20(20)। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट्स इन द मेनका गांधी केस, और उसके और भी केसेस आते चले गए इसके बाद। इट हैज डिक्लेयर्ड दैट फॉलोइंग राइट्स आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। 21 के हिस्से में आता है। एक तो राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ। सोच लीजिए, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 में है, इसके बावजूद भी हम लोग का हेल्थ कितना टारगेटेड है। राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर अप टू 14 years of age, राइट टू फ्री लीगल एड, राइट अगेंस्ट सोलिडरी कॉन्फाइनमेंट, अकेले आपको जंगल में जेल में बंद नहीं किया जाएगा,
राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकप नहीं हो सकता है, आपको हथकड़ी लगाना मना है, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, right against delayed execution, right to travel abroad, right against bonded labor, right against custodial harassment, right to emergency medical aid, right to timely medical treatment in the government hospital, right not to be driven out of a state, राज्य से बाहर आपको धकेला नहीं जा सकता है, right to fair trial, right of the prisoners to have as necessities of life, right of women to be treated with the decency and dignity, right against public hanging, right to hearing, right to information, right to reputation, right to appeal from the judgment of the conviction, right to a social security and protection of the family, right to social and economic justice and empowerment, right against bar fetters, right to appropriate life insurance policy, right to sleep, right to freedom from noise pollution, right to electricity. तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त किया जाता है. इफ़ यू कैन ड्रीम यू कैन डू इट. अगर आप सपना देख सकते हैं तो जरूर इसको पूरा भी कर सकते हैं. बस आप लगे रहिए. थैंक यू.